खुदा के बाबरकत नाम में देखते सुनने वालों को सलाम सलाम प्यारे पाकिस्तान। हमारा इदारा आज हंसा कॉलोनी G8 में है और हमारे साथ हैं मंजूर मसीह। तो भाई साहब कैसे हैं, आपसे तबीयत ठीक है? बिल्कुल दुआएं खुदावंद का शुक्र है। अ, आपको आप वाइस चेयरमैन हैं जमात इस्लामी की तरफ से। जी मैं जमात इस्लामी के पैनल पे यूसी 64 में वाइस चेयरमैन का इलेक्शन लड़ रहा हूँ। जी, तो क्या चाहते हैं आप करना अपने मुल्क और कौम के लिए? हमें पता चला है कि आप बिजनेसमैन हैं, तो सियासत में आने की कोई वजह हो सकती है, कोई रीज़न हो सकता है? ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖੁਦ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ। जी, आप बता सकते हैं क्या मसाइल हैं आपके? ਮਸਾਇਲ ਸਾਡੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟ ਇਥੋਂ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲਏ ਨੇ। 3.5 ਸਾਲ ਪੌਣੇ 4 ਸਾਲ ਹੁਕੂਮਤ ਰਹੀ ਹੈ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ। जी, ਤਿੰਨ ਹੀ ਐਮਐਨਏ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੋਟ ਲਏ ਨੇ ਆਬਾਦੀ ਚੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੈਸ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਗੈਰ ਨੰਬਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਗੈਸ ਲਾਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਕਿ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ। ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨਾਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵੋਟ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਵਾਅਦੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅਲੀ ਨਵਾਜ਼ ਵਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੋਟ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਬਰਾਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਬਗੈਰ ਨੰਬਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਈ ਮਰਤਬਾ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਇਸ ਯੂਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਏ ਨੇ ਨੂਰ ਲੀਗ ਦੇ ਬੈਦਲ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 5-7 ਸਾਲ ਵੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਈਤ ਹੁਣ ਹੋਵੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ तो ਹਰ ਜਨਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੋਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਣਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੀਵਾਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਮੀ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇ, ਸਾਡਾ ਕੈਦ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸਲਮ ਕਿਸੇ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਇਆ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਉਸਨੇ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ 250 ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਥੱਲੇ ਬਗੈਰ ਨੰਬਰਿਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਡੀਏ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਦੀ ਸੀਡੀਏ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਰ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਥੱਲੇ, ਬਗੈਰ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਨੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਬਗੈਰ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਲੀਡਰ ਵੇਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਭਾਈ ਹੈ ਜੇ ਸਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਆਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਆਂ ਅਸਲਮ ਆਉਂਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਨੂਰ ਲੀਗ ਦਾ ਨਾ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। मंजूर मसीह साहब, आपने बहुत अच्छी बात की है, लेकिन बताइएगा कि आपके इस इलाके में, इस मोहल्ले में जो रजिस्ट्री है, जो आपके तमाम प्रॉपर्टी के मामलात हैं, वो सारे इस्लामाबाद में रजिस्टर्ड हैं या लोकल गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड हैं?
ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ में ही हैं। अच्छा, दूसरा ये बताएं, पता आवाम को भी है, लेकिन कुछ चीज़ें हम चाहते हैं कि रिकॉर्ड पे आनी चाहिए। और दूसरा ये जो कच्ची आबादियों में रहने वाले लोग हैं, ये पूरे इस्लामाबाद की सफाई करते हैं। कच्ची आबादियाँ जो है ये इस्लामाबाद में नहीं आती। कभी आपने किसी सियासतदान को बताया हो कि जनाब वो जो पूरे इस्लामाबाद की सप्लाई करते हैं, सफाइयाँ करते हैं, तो उनके कॉलोनियों में भी सफाई का अमला आना चाहिए CDA की तरफ से? ਇਹ कभी ਬਿਲ- बात की आपने? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ 'ਚ ਆਬਾਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। आपने अपने कायद से ये बात की कि हमारा जो इलाका है, जो हंसा कॉलोनी है या चार्ल्स कॉलोनी है आपके साथ, इसमें भी सफाई का अमला आना चाहिए, जो CDA की तरफ से पूरे इस्लामाबाद के सेक्टरों को साफ करने वाला अमला है। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਰਹਿਸ਼ੀ ਹਾਂ। आपने अपने कायद से बात की, आपके मैंने मंशूर अपने में है। कैद से बात की, उसने आगे बात की है, लेकिन ये सुनते नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा कि आपका जो कॉलोनी है, कितने वार्ड है यहाँ पे हमारे मसीहों इस, के? हमारे इस आबादी में से जी ये मैं कम कम बात करना चाह रहा हूँ। जी। भाई ने बात की है, ये पूरी MNA की सीट है। जी। अगर हमारे वोटिंग का हिसाब लगाए ना, यहाँ पे पहले 49 था, फिर 47 ये इस तरह बने ना, तो अभी पूरी MNA की सीट है। अगर ये एक MNA को अगर मुंतखब करें ना अपने क्रिश्चियन को, और सभी उसी के साथ हो जाए, जी, ठीक है। और सभी जो है ना उसी को अगर उसी के कहने पे चले, अगर उसी को अपना वो मान ले तो वो जी 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 हाँ जी, अगर उसी को अपना वो मान ले तो वो ये हमारा लीडर है। तो इस हल्के का MNA जो है ना वो हमारा क्रिश्चियन बन सकता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम साकिब है, साकिब नज़ीर। आपकी एजुकेशन कितनी है? मैंने ग्रेजुएशन की हुई है पंजाब यूनिवर्सिटी से। तो अभी इस जमात से आप इलेक्शन के लिए जी, कैंपेन कर रहे अभी मुझे टिकट मिला है मिनॉरिटी का ना, हैं? जी। मिनॉरिटी काउंसलर का। आप बिजनेसमैन हैं? जी मैं बिजनेस हूँ, बिजनेसमैन हूँ। मेरा प्रॉपर्टी का काम है। ठीक है जी। और प्रॉपर्टी के काम में शुक्र है अल्लाह खुदा उनका कि काफ़ी अच्छा है। भाई बताइएगा, ये जो कच्ची आबादी है, अब कच्ची भी नहीं कह सकते इसको क्योंकि आप मकामी हो गए, यहाँ पे आपको अलॉट हो गई ये सारी कॉलोनी जो है। मुझे बताइएगा कि यहाँ पे CDA का अमला आता है सफाई के लिए? नहीं, CDA का अमला आना तो चाहिए, क्योंकि जब से रेगुलराइज हुई है ये कॉलोनी। आप लोगों ने कभी किसी सियासी जमात से मुतालबा किया हो कि बहुत दफ़ा, बल्कि अभी जिस यानी कि, जमात से आप जिस अभी जमात हैं? से हम अभी कर रहे हैं, 12 उनको भी बोला है। और जो दूसरी भी हैं, जो हमारे दोस्त भाई जो दूसरी जमातों में जैसे नून लीग है, PTI है, उनको भी हमने कहा है, लेकिन कुछ भी कोई ऐसा बात ही नहीं सुनते, क्या कह सकते हैं। और दूसरा अपने तौर पे हमने किया था, जी। कॉलोनी वालों ने अपने तौर पे किया था, लेकिन वो आपको पता है कि प्राइवेट काम कितनी देर चलता है। दूसरा ये बताएं कि आपके पास पानी का फिल्ट्रेशन प्लांट है इस कॉलोनी का? फिल्ट्रेशन प्लांट सर नहीं है। आपने मुतालबा किया अपनी सियासी जमात से? जी। इसके साथ आपके पानी का नाला गुजर रहा है, उसकी चारदीवारी बनी हुई है ताकि नहीं। कॉलोनी का नुकसान ना हो? नहीं। आपके मंशूर में शामिल है? जी मंशूर में शामिल है। आपने अपने कायदीन को बताया? जी बिल्कुल। आप बल्कि चाहते हैं कि अभी- वो दीवार बन जाए नाले की? जी बिल्कुल, हाँ जी चाहते हैं सर। तो इसके लिए काविश तो करनी पड़ेगी ना आप लोगों को, क्योंकि जी, देखें बिल्कुल। यहाँ पे रहायशी भी आप हैं, मसाइल भी आपके हैं, जी, और अब फिर सियासतदान भी आप हैं। जी। आप जो अभी- बिजनेसमैन हो आप ही अभी सियासतदान। अभी लोग जो है ना बट गए हैं। जी। अभी हमारे मुकद्दस दिन है 25 दिसंबर, हाँ जी। और ये अभी अब उधर से लोकल बॉडीज इलेक्शन शुरू हो गए हैं। लोग 25 दिसंबर को छोड़ के और लोकल बॉडीज इलेक्शन में इस तरह मगन हुए हैं कि वो 25 दिसंबर को कोई नाम भी लेना जो है ना, अभी वो मेरा सोच भी नहीं है उनकी। देखिए जी, हमारा अदारा जो है पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहा है। हमने क्राइम कंट्रोल अवेयरनेस सेमिनार्स करवाए हैं पूरे इस्लामाबाद में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, स्कूलों में, स्लम सेक्टर्स में और सरकारी इदारों में भी। अब KPK पंजाब को अवेयरनेस दे रहे हैं। तो आपके पास भी अवेयरनेस के लिए हम आए कि आपको अपने राइट्स का पता है, कैसे अपने राइट्स लेने हैं। जी तो इसके लिए आप कोशिश करें अपने उसके लिए। आपके पास जनाजा गाह नहीं है जी ऐसे ही है। जब भी, क्योंकि ये कंजेस्टेड ये है,
आपके छोटे-छोटे घर हैं, तो जब मरना तो सबने जी, मौत-फ़ौत सबके साथ है। तो यहाँ पे जनाज़ा रखने के लिए जगह नहीं। कभी आपने सोचा कि कम्युनिटी सेंटर हो तो हम उसमें रखें, या जनाज़ा गाह हो? कभी किसी सियासी जमात को आपने बताया हो? जी, जी, बताया है। तो आज तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया? नहीं, रिस्पॉन्स नहीं आया क्योंकि वो कहते हैं मुल्की हालात इस तरह के हैं, क्या कह सकते हैं, फंड नहीं है, कभी कुछ इस तरह बहाने करके चले जाते हैं। सारा पाकिस्तान फंड से ही चल रहा है ना? जी, ये तो बात है। मंजूर भाई, आप क्या कहते हैं इसके बारे में? मैं तो गल कहना जी, पानी का फिल्ट्रेशन प्लांट होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। साडे नाल वादे भी कीते ने इन्हां ने, किसने वादा किया था आपके साथ? ते वादा अली नवाज वान ने कीता वादा। आपको ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਹੀਦਲ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੌਨ ਲੀਗ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਲਵਾਵਾਂਗੇ। ਐਮਐਨਏ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਜੀ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਧੇਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। अब जो आपकी जमात है मियाँ असलम साहब, जी जी, तो इनसे आप पर उम्मीद है? बिल्कुल जी, पूरी उम्मीद है। खुदावंद की मेहरबानी से आबादी वाले हमें वोट दें, हम कामयाब होके गैस की पूरी जदोजहद करेंगे और पानी की पूरी जदोजहद करेंगे कि इधर आने लगे। उस तो बाद नाले की चार दुआरी, जो बगैर नंबरों के मीटरों का मसला है उनका, यानी कि आबादी के हर मसाइल पे हम बात करेंगे, पूरी जदोजहद करेंगे। आप चाहते हैं कि जो आपके इलाके के मसाइल हैं उनको हल किया जाए? बिल्कुल जी, अवाम हमें कामयाब करें तो हम दर्द रखते हैं कि अपनी कौम के लिए, कि इसीलिए तो सियासत में आए हैं ठीक है जी। कि हम खुद काम करें, ठीक है जी। जी। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਲਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ठीक है जी। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। आपके इस मोहल्ले में सरकारी डिस्पेंसरी है? नहीं है सर, आप क्या समझते हैं, सरकारी डिस्पेंसरी होनी चाहिए? ਸਾਡੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੇ ਘਰ ਨੇ, ये कितने मरले का घर है आपका? ਇਹ 20-30 ਦਾ ਪਲਾਟ ਹੈ ਜੀ। 20-30 का प्लॉट? 8-8 10-10 12-12 10-10 8-8 ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। कोई बीमार हो जाए या कोई मर जाए तो वो उसके लिए मुश्किल हो जाती है। सर ਸਾਡੇ वास्ते ਤੇ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ बेशुमार। आवाम हमें वोट दे के G8 चोट्स यूसी की कामयाब करें तो हम इधर कम्युनिटी सेंटर, गैस, जितने मसाइल है उस पे पूरी कोशिश करेंगे। अगर किसी ने ना माना तो हम रोड ब्लॉक करके दमादम मुस्तकिल अंदर अपनी आवाज जड़ी है आला हकाम तक पहुंचाएंगे। आपका क्या कहना है जी? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। जी साकिब भाई। जी हाँ जी, मैं बात करूँगा वो कि एसपी सिंघा साहब ने वोट दिया तो इस पंजाब के सारे महल्ले को की सारी शक्ल ही बदल गई ना। जी। तो अभी उस वोट की हमें इतनी कदर है, इतनी कदर है, इतनी कदर है कि अभी हमें दूसरे दर्जे का शहरी नहीं, अभी 5वें दर्जे का शहरी समझते हैं ये लोग। क्योंकि अभी जिस जगह पे हम रह रहे हैं G8 1 का इलाका है और ये 19 नंबर गली है, इसको गली तक नहीं अलाट की गई हमारे इलाके को कि अगर कोई आ जाता है ना कोई, तो उनको पता ही नहीं चलता कि यार ये किस साइड से जाना है, किस साइड से। और एक रोड पार करने के बाद ही आपको सारी सहूलियात तो आपको नज़र आएंगी कि यार यहाँ पे स्ट्रीट लाइट भी है, यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर भी है, यहाँ पे गैस भी, बिजली, गैस, पानी, यानी कि सारी बुनियादी ज़रूरियात जो है ना, जो इंसान की हैं, वो सारी वहाँ पे मैसर हैं। लेकिन एक रोड पार करने के बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं आपको मिलेगा सिवाय लाइट के अलावा, और वो भी पता नहीं कैसे होगी, कैसे नहीं हुई, बल्कि डबल हमसे फीसेस ली गई हैं। 1 मीटर की फीस है 6,000 रुपये, और बिजली के मीटर के? बिजली के मीटर की फीस है 6,000, और हमसे 30-40 हज़ार रुपया लिया गया कि आपका बिजली का मीटर लगेगा। लेकिन फिर भी लोगों ने दिया, अपने ज़रूरत थी, बिजली के बगैर तो कोई गुजारा भी नहीं कर सकता। तो मैं तो चाह रहा हूँ कि मैं अभी सियासत में आने का कोई ऐसा मकसद नहीं था, लेकिन मैं आया हूँ कि अपनी कम्युनिटी के लिए, कि ताकि जी, मुझसे लोग अक्सर पूछते हैं कि यार आप जमात इस्लामी को क्यों ज्वाइन आपने किया, तो मैंने उनको बताया कि यार आप जहाँ भी जाएंगे ना, आपको मिनॉरिटी अक़लियत का लोग समझते हैं, लेकिन वाहिद जमात इस्लामी ऐसी एक जमात है जिसमें उन्होंने मिनॉरिटी के लफ्ज़ को ख़त्म कर दिया है, बल्कि उसके लिए अहले किताब विंग रखा गया है, ताकि किसी को ये एहसास ही ना हो या किसी के जहन में ना ये बात आए कि मैं एक मिनॉरिटी से हूँ या मैं छोटे कबीले से हूँ। जी मंजूर भाई,
बताइएगा आपकी जो जमात है उसका क्या मंशूर है आपके लिए? देखिए जी, हमारे लिए उनका मंशूर ये है कि हमारे जो कैद है मियाँ मोहम्मद असलम साहब जमात इस्लामी वाले, वो कहते हैं कि आप मिनाल्टी नहीं है, आप पहले किताबें आप बराबर के शरीक हैं, आप इस पाकिस्तान में बराबर के शरीक हैं। और उन्होंने साबित करके दिखाया कि वाकई आप बराबर के शरीक हैं। देखें, उधर जमील खोखर को उन्होंने टिकट दिया चेयरमैन का, वाइस चेयरमैन का मुझे दिया यूसी चौथ में, G8 हंसा कॉलोनी में, ठीक है। और भी कई लोगों को टिकट दिए। वो कहते हैं कि आपका पूरा हक है, हमारे दुख सुख में शरीक रहते हैं तो मियाँ मोहम्मद असलम रहते हैं जमात इस्लामी वाले। मंजूर मसीह साहब, बताइएगा कि ये जो आपके इलाके के मसाइल हैं, आपके कायदीन जो हैं उन्होंने आपसे कोई अहद वफा की है कि वो इनको पूरा करेंगे जो आपके मसाइल हैं? जी जी, उन्होंने आख्या जी, वो मेयर दे भी उम्मीदवार ने, उन्होंने आख्या जी अगर असी कामयाब जिस वे होने हैं तो साडे नाल होणगे, पूरे इलाके के मसाइल जिहड़े उन्होंने कहा जी असी ठीक करांगे। ठीक है जी। पूरी पूरी यकीन दहानी उन्होंने सानू दवाई है, क्योंकि साडे 250 घर का उन्होंने सीडी को सर्वे करवाया जी, सही है जी। और असी उन्होंने उत्ते पुर उम्मीद है इस वास्ते कि वो ही इत्थे आबादी चाहते जाते ने साडे। हालांकि जिन्हों ने बड़े बड़े वड्डे वादे कीते ने ना, जी। साडे इत्थे 12 फुट ते गैस जे ते साडी आबादी च कोई भी नहीं। इस पूरी आबादी में स्वीगस्ट नहीं है। नहीं सर, गैस ही नहीं है। बल्कि- रोना इस चीज का कि साडे कोलों वोट हर पार्टी खड़दी है इत्थों ते बड़े बड़े वादे करते ने ते जरा भोरा ख्याल नहीं आउंदा कि ਅਸੀਂ ਇਹ ਝੂਠ ਮਾਰਨ ਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਿਆਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬੁਲਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰਦਨ ਥੱਲੇ ਤੇ ਵੋਟਰ ਦੀ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਵੋਟ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 7-7 ਸਾਲ 5-5 ਸਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਵੜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹਲਕੇ ਆਪਣੇ ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ मियाँ मोहम्मद असलम साहब ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਆਬਾਦੀ 'ਚ ਅਗਰ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ मियाँ मोहम्मद असलम आਉਂਦੇ ਨੇ। जी मंजूर भाई, बताइएगा आपकी जो जमात है उसका क्या मंशूर है आपके लिए? देखिए जी, हमारे लिए उनका मंशूर ये है कि हमारे जो कैद है मियाँ मोहम्मद असलम साहब जमात इस्लामी वाले, वो कहते हैं कि आप मिनाल्टी नहीं है, आप पहले किताबें आप बराबर के शरीक हैं, आप इस पाकिस्तान में बराबर के शरीक हैं। और उन्होंने साबित करके दिखाया कि वाकई आप बराबर के शरीक हैं। देखें, उधर जमील खोखर को उन्होंने टिकट दिया चेयरमैन का, वाइस चेयरमैन का मुझे दिया यूसी चौथ में, G8 हंसा कॉलोनी में, ठीक है। और भी कई लोगों को टिकट दिए। वो कहते हैं कि आपका पूरा हक है, हमारे दुख सुख में शरीक रहते हैं तो मियाँ मोहम्मद असलम रहते हैं जमात इस्लामी वाले। मंजूर मसीह साहब, बताइएगा कि ये जो आपके इलाके के मसाइल हैं, आपके कायदीन जो हैं उन्होंने आपसे कोई अहद वफा की है कि वो इनको पूरा करेंगे जो आपके मसाइल हैं? जी जी, उन्होंने आख्या जी, वो मेयर दे भी उम्मीदवार ने, उन्होंने आख्या जी अगर असी कामयाब जिस वे होने हैं तो साडे नाल होणगे, पूरे इलाके के मसाइल जिहड़े उन्होंने कहा जी असी ठीक करांगे। ठीक है जी। पूरी पूरी यकीन दहानी उन्होंने सानू दवाई है, क्योंकि साडे 250 घर का उन्होंने सीडी को सर्वे करवाया जी, सही है जी। और असी उन्होंने उत्ते पुर उम्मीद है इस वास्ते कि वो ही इत्थे आबादी चाहते जाते ने साडे। हालांकि जिन्हों ने बड़े बड़े वड्डे वादे कीते ने ना, जी। साडे इत्थे 12 फुट ते गैस जे ते साडी आबादी च कोई भी नहीं। इस पूरी आबादी में स्वीगस्ट नहीं है। नहीं सर, गैस ही नहीं है। बल्कि- रोना इस चीज का कि साडे कोलों वोट हर पार्टी खड़दी है इत्थों ते बड़े बड़े वादे करते ने ते जरा भोरा ख्याल नहीं आउंदा कि ਅਸੀਂ ਇਹ ਝੂਠ ਮਾਰਨ ਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਿਆਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬੁਲਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰਦਨ ਥੱਲੇ ਤੇ ਵੋਟਰ ਦੀ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਵੋਟ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 7-7 ਸਾਲ 5-5 ਸਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਵੜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ,
ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹਲਕੇ ਆਪਣੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸਲਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਆਬਾਦੀ 'ਚ ਅਗਰ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸਲਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੇ ਆ ਮਸੀਹ ਭਾਈਆਂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਰ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਨਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੇ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਜੀਤ ਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਗਿਰਬਾਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖਨੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਪਟੋਲਾ ਤੇ ਸਾਥੋਂ ਹੀ ਓਲਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੀ ਵੋਟ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀਆਂ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਵਾ ਬਗਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ MNA MPA ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜੇ। ਅਸੀਂ 20 ਵਾਰੀ ਅਲੀ ਨਵਾਜ਼ ਖਾਨ ਕੋਲ ਗਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੋਂ ਹੱਸ ਕੇ ਟਾਲ ਛੱਡਣਾ, ਸੱਜਾ ਖੱਬਾ ਮਾਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਡੱਕਿਆ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਟ ਲਾਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਈ? ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਰੋਡ ਗਲੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ 4-5 ਗਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਜਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੇ ਬਜਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਵੋਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਂ ਕਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੋਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਜੇ ਇਹ ਅੱਖ ਨਾਲ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ, ਕੰਮ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਭੋਰਾ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਭੋਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾਲ ਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ, ਮੀਆਂ ਸਲਮ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜੇ ਸਾਲਕ साहब, वो आंदा है बस। साहब भी आप बता रहे थे एजुकेशन के लिए भी कोई काम कर रहे हैं आप लोग? हाँ जी, तो एजुकेशन के लिए भी काम हम कर रहे हैं। अभी देखिए, मैं एक छोटा सा पॉइंट अभी बुजुर्गों ने एक शेयर किया जी। कि 12 फुट पे गैस है, हाँ जी। और 12 फुट का जो रोड है ना, उसके इस साइड पे मस्जिद है, मक्की मदनी मस्जिद, जी। और उसके 12 फुट के दूसरी साइड पे चर्च है। इधर बिजली गैस पानी सब कुछ है, और इधर रोड को पार करें ना 12 फुट से आगे आए जी। तो चर्च है। चर्च में सिर्फ लाइट है, ना बिजली गैस पानी कुछ भी नहीं है। यानी कि इस तरह की इंतहा है इन लोगों की, इनके ज़हन की, या क्या कह सकते हैं इनको। तो अभी खुदा बेहतर करे अगर। और अभी आपने बात की एजुकेशन की, तो एजुकेशन के लिए तो हम बहुत ज़्यादा मुतहरिक हैं। मैं तो चाहता हूँ कि अगर मैं मेरे पास हो ना, तो मैं कहूँ कि हमारा हर बंदा, हर बच्चा जो है ना, वो कम से कम ग्रेजुएशन या FSC से कम ना हो, क्योंकि ये मेरा विजन है। और मैं चाहूँगा कि अगर मैं इस फील्ड में आया तो मैं ज़रूर एजुकेशन को प्रमोट ज़रूर करूँगा और अवेयरनेस दूंगा एजुकेशन के बारे में, कि अगर आपने एजुकेशन नहीं ली तो आपको जो है ना, वो यानी कि आप कामयाबी नहीं हासिल कर सकते। कामयाबी की सीढ़ी एजुकेशन है। आप सबका बहुत शुक्रिया जी, आप लोगों ने टाइम दिया और हम दिल की बात कर सकें। ऐसा है जी कि देखने सुनने वालों के लिए हम एक मैसेज छोड़ते हैं कि जनाब, ये जो आपके सेक्टर के लोग हैं, स्पेशली इस्लामाबाद के लिए हम बात करते हैं, इनके किरदार से आप वाकिफ़ हैं, और हम देखने सुनने वालों से रिक्वेस्ट करते हैं इस पर डिबेट भी कीजिएगा ताकि इन मसाइल का हल हो सके। और तमाम सियासी जमातों से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जनाब, इन्हीं के वोट से आप पार्लियामेंटेरियन बनते हैं, इन्हीं के वोट से आप MNA MPA मिनिस्टर वज़ीर सफ़ीर बनते हैं, इन्हीं के वोट से आप लोग परवान चढ़ते हैं तो पाकिस्तान परवान चढ़ता है। तो ये जो मसाइल हैं आपके सामने हैं, और हम सारी सियासी जमातों के पास जा रहे हैं। हमारे जितने भी इस्लामाबाद में मसीही भाई मुतहरक हुए हैं, तो पाकिस्तान तो सबका है, इक्वल राइट्स हैं और सबको राइट्स मिलने भी चाहिए। ये पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम है, और हम अपनी पब्लिक को भी अवेयर करना चाहते हैं कि जनाब, आपके सेक्टर के जो लोग हैं, आप उनके किरदार से वाकिफ़ हैं, आप उनके मिजाज से वाकिफ़ हैं, तो खुदारा जब आप वोट देते हैं तो अपने ज़मीर का सौदा ना करें, किसी के क्रिसमस केक लेके वोट ना दें, किसी का राशन पैकेज लेके वोट ना दें, और वोट देते तो ज़मीर का वोट दें और अपने ज़मीर का सौदा ना करें। उन लोगों को दें जो आपके आस पड़ोस में और आपके अपने लोग हैं, ताकि जब कल को बात आती है इस मसले के हल की, तो आपके जो अपने कौमी लीडर होंगे वो मसाइल का हल भी कर सकते हैं।
تو ثاقب صاحب آپ کا بھی شکریہ، بھائی صاحب آپ کا بھی شکریہ، منظور مسیح صاحب آپ کا بھی شکریہ، آپ نے ہمارے ادارے کو ٹائم دیا تاکہ ہم آپ کی سنیں بات اور اس کو وائرل کریں. اور وائرل کرنے کا بھی مقصد سادہ سمپل ہے، ہم کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں رکھتے، لیکن ہیں پاکستانی. ہمارے گھر کے جو مسائل ہیں وہ ہم نے انہی پارلیمنٹیرین کو بتانے ہوتے ہیں، تو ہم پبلک اویئرنیس پروگرام کے لیے یہ انٹرویو کرتے ہیں. بہت شکریہ، بہت مہربانی. اس پہ ڈبیٹ کیجیے گا، اور خدا را کرسمس کو کرسمس ہی جانے. کرسمس سے بڑی اہمیت ان سیاسی جماعتوں کا نہ دیں. آپ ان کی قدر کریں، ان کو ووٹ ضرور دیں، لیکن یہ دیکھیے گا کہ وہ نجات دہندہ ہے، وہ منجی خدا ہے، وہ ہمارا کریٹر کائنات کا تخلیق کار ہے. تو خدا را جو ہمارے مذہبی رسومات ہیں ان کو ٹائم دیجیے گا، دعا کیجیے گا، تاکہ جو بھی ہو، جو بھی آئے سیاسی جماعت، وہ پاکستان کے لیے بہتری کے لیے آئے اور خدا کی طرف سے آئے. بہت شکریہ، بہت مہربانی. ڈبیٹ کیجیے گا.